In my today's session, I will cover a very important topic of corporate finance, that is share capital. In my yesterday's session, I will cover some of important topic of share. Means what is share, what are types of share, how the company can raise funds by issuing share. All these things were discussed in my yesterday's class. In my today's session, I will try to cover another important topic, that is share capital. This topic is totally linked up with my yesterday's class. This topic is very important for the students of all the commerce section, that is for class 12, BBA, BCom, MCom, etc. So this topic is very important, and this is also important for general public because we as an individual contribute our funds in a form of shares to any company. So definitely we must know how the share capital can be formed, how the company can collect funds from capital, and what the company is going to do with our funds. So we will discuss share capital in today's session one by one. First of all, we must discuss what is share capital. It denotes the amount of capital raised by issue of share by the company. Means share capital represents that amount of capital which is being raised or which is being collected by issue of capital, by issue of shares. Means a share capital is only that part of capital which may be collected by issue of shares. A company can create their capital by some other sources also. It may possible that the owners of the company can contribute their funds in the capital. It may possible that the owners of the company may collect some part of capital fund from their friends and families. It may possible that the company may take loan from bank as well as lenders to create capital. But share capital includes that part of capital only which may collected by issue of shares. This may remain with the company till the liquidation of the company, or it may be possible that the shares may be redeemed between, but there is a proper agreement between shareholder and the company for the redemption at the time of issue of shares. मतलब कंपनी के पास जो फंड्स शेयर कैपिटल से आए होते हैं वो कंपनी के पास लॉन्ग टर्म तक रह सकते हैं, और वी कैन से टिल लिक्विडेशन तक कंपनी के रह सकते हैं. बट कई बार ऐसा भी होता है कि जो शेयर्स के फंड्स होते हैं वो बिटवीन या बिफोर लिक्विडेशन कंपनी को शेयर होल्डर्स को वापस करने होते हैं. बट देयर आर some conditions, and the conditions is being described or defined between shareholders as well as the company at the time of issue of shares. वो सारी conditions, वो सारे terms जब कंपनी शेयर्स को इशू करती है उसी समय शेयर होल्डर्स और कंपनी के बीच में डिस्कस होके क्लेरिफाइड होते हैं, एंड ओनली ऑन दोज कंडीशंस द कंपनी कैन रीपे whole amount that is being collected from the shareholder. What the shareholder become? The shareholder who contribute their funds in the share capital may become a owner of the company, and some owners may have right to participate in company's decisions, and some owners may not have right to participate in company's decisions. But shareholders definitely act as a owner of the company because they may contributed their funds and create share capital for the company. The total share capital is being divided into small parts, and each parts are called shares. The individual who purchase individual part of share become shareholders, and the funds given on behalf of each share may create share capital for the company. So share capital for the company is that part which may be raised or which may be created by contribution on issue of shares in general public, and it may remain with the company till its liquidation, as well as the owner of the company may react as a
shareholder or the shareholder become the owner of the company. Now we will discuss what are types of share capital. शेयर कैपिटल के क्या टाइप्स होते हैं, क्योंकि हमने ये डिस्कस कर लिया कि जो भी वी पीपल जनरल पब्लिक जो भी फंड्स कंपनी में कलेक्ट करती है और जिसके थ्रू कंपनी अपने कैपिटल को क्रिएट करती है उसको हम कहते हैं शेयर कैपिटल। तो क्या एक ही तरीके की शेयर कैपिटल होती है या और भी कुछ इसके टाइप्स होते हैं? वी विल डिस्कस अ शेयर कैपिटल टाइप्स वन बाय वन। We can divide share capital in various ways. One way is authorized share capital, that is being divided further into issued capital and unissued capital. Authorized share capital is the capital on which the company takes authority from Companies Act to issue in the market or to start its business. That is authorized share capital. Among the authorized share capital, the company has the right how much the share company wants to issue or how much the company doesn't want to issue. Authorized share capital से कंपनी के पूरा अधिकार होता है, वो जितने भी शेयर्स को चाहे वो मार्केट में इशू करे और जिन शेयर्स को न चाहे वो मार्केट में इशू न करे. Further, we divide issued share capital into subscribed capital and unsubscribed capital. We people purchase share from the market, from stock market. Some shares of the company are being subscribed, means issued में शेयर कैपिटल में से कुछ ऐसे शेयर्स होते हैं जो कि कंपनी जो जनरल पब्लिक सब्सक्राइब नहीं करती और जनरल पब्लिक जिसके लिए एप्लीकेशन नहीं डालती कि यस वी वांट दैट पोर्शन ऑफ द शेयर, दैट इज नोन एज अनसब्सक्राइब्ड, एंड द पोर्शन दैट इज बीइंग issued or that is being raised in demand by the general public is considered in subscribed share capital. Now, called up capital and uncalled up capital. The company has the right to decide कि कितना portion of subscription को हम general public से accept करें और कितने applications को हम reject करें. It may be possible कि company ये decision ले ले कि नहीं हमें पूरे सब्सक्रिप्शन को कॉल नहीं करना है, हमें कुछ ही सब्सक्रिप्शंस को कॉल करना है, कुछ को हमको रिजर्व करके रखना है, कुछ जो हमारे पास सब्सक्रिप्शन आए हैं उनको हम लेटर ऑन कॉल करेंगे या अभी प्रेजेंट टाइम में हम उनको कॉल नहीं करते हैं. तो जो हम कॉल करते हैं दैट आर केम अंडर कॉल्ड अप कैपिटल, एंड जो हम कॉल नहीं करते हैं जो कंपनी कॉल नहीं करती है दैट केम अंडर अनकॉल्ड अप कैपिटल. देन कॉल्ड अप अगेन divided into two parts, paid up capital and calls in arrears. आप we जनरल पब्लिक हमने शेयर परचेज कर लिया, हम शेयर्स के पैसे देना स्टार्ट कर दिए, तो कंपनी अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हमको शेयर्स के पैसे लेती है. मतलब जिस समय हम एप्लीकेशन डालते हैं उस समय कुछ पैसे ले लेती है, उसके बाद कंपनी जब हमें शेयर्स अलॉट करती है कुछ पैसे उस समय ले लेती है, उसके बाद जब कंपनी थोड़े थोड़े टाइम के बाद वो बाकी पैसों को कंपनी हमसे डिमांड करती है, क्योंकि जब कंपनी को हम पूरे पैसे दे देंगे उस दिन से कंपनी को हमें डिविडेंड पे करना होगा. तो कंपनी अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स हमसे शेयर्स के पैसे का कॉल्ड अप करती है. अब कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं जो कंपनी के पूरे पैसे कंपनी को दे देते हैं, मतलब जितने के भी हमने शेयर्स खरीदे होते हैं वो पूरे के पूरे पैसे कंपनी को हम दे देते हैं. तो शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं जो पूरे पैसे कंपनी को नहीं देते हैं, जो नहीं देते हैं दे आर केम अंडर कॉल्स इन अरियर्स, एंड जो दे देते हैं दैट आर केम अंडर कॉल्स इन और पेड अप कैपिटल. वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स वन बाय वन. Registered, authorized or nominal capital, that part of total capital with which company wants to register. Authorized या nominal capital, nominal share capital वो capital होता है जिससे कंपनी अपने आप को authorize करना चाहती है, कंपनी अपने आप को register करना चाहती है, उसको हम कहते हैं authorized share capital. Now next one is issued capital. It is that part of authorized capital which is offered to public to acquire. Means ये वो पार्ट होता है कैपिटल का जो कि जनरल पब्लिक को ऑफर किया गया होता है कि आप इन शेयर में से चाहें तो कंपनी के शेयर्स को परचेज कर सकते हैं. Then subscribed means it is that part of issued capital
which is accepted by the public. Subscribed capital cannot be more than issued capital. If it happens, then it will be oversubscription, and if it will be rejected or accepted under pro rata basis for providing proper accounting treatment. सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब वो कैपिटल होता है जिसपे जनरल पब्लिक ने अपना एप्लीकेशन रेज किया है, जनरल पब्लिक ने ये एक्सेप्ट किया है कि यस हम ये शेयर्स को परचेज करेंगे. इट मे पॉसिबल कि कई बार कंपनी ने जितने सब्सक्रिप्शन या जितने शेयर्स मार्केट में रेज किए हैं, मार्केट में सेलिंग के लिए ओपन मार्केट में इशू किए हैं, उससे ज्यादा कंपनी के पास सब्सक्रिप्शन आ जाते हैं. ज्यादा सब्सक्रिप्शन आने के बाद कंपनी क्या कर सकती है, जो एक्सेस होगा या तो उनको रिजेक्ट करेगी या फिर सब शेयर होल्डर्स में प्रोरेटा बेसिस पे शेयर्स को इशू करेगी. वी विल डिस्कस प्रोरेटा ऑन न्यू क्लास. Next one is called up capital. It is that part of issued capital which is to be raised or which is to be called by shareholders. Company has demanded money of this part, shareholder does not pay, then this may came under calls in arrear, and if the shareholders can pay full amount, then it is called up and paid up capital. It is considered in paid up capital for the company. Now, it is that part of capital which is paid by shareholder is paid up capital. Reserve capital, one company can determine the special resolution that some part of social subscribed capital will not be demanded from shareholders as it is not demanded up to winding up of company, that is part of reserved capital for the company. It cannot be changed in general capital without the permission of the board. So, the types of share capital are discussed clearly. Now we will discuss all these types with a small example, so the concept is very clear. Just let us suppose कि कोई भी एक कंपनी है ABC, उसने ऑथोराइज करवा लिया अपने आप को, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर करवा लिया 10,000 शेयर से, मतलब कंपनी ने खुद को रजिस्टर करवाया है कितने से, 10,000 शेयर से 10 रुपीज पर शेयर. हर एक शेयर के 10 रुपीज कंपनी ने डिसाइड किए हैं, और कंपनी ने टोटल कितने शेयर से अपने आप को रजिस्टर करवाया है, 10,000 शेयर्स, दैट इज ऑथोराइज्ड शेयर्स. इन ऑथोराइज्ड शेयर्स में से कंपनी ये डिसाइड करेगी कि अब मुझे कितने शेयर्स इशू करने हैं और कितने शेयर्स इशू नहीं करने हैं. कंपनी चाहे तो वो पूरे 10,000 शेयर्स भी मार्केट में इशू कर सकती है, बट after issue, after allotment, company has to pay the required dividend to the shareholders. So the company may issue only that much shares in the market on which the company can meet out present demand of its capital. कंपनी सिर्फ मार्केट में उतने ही शेयर्स को इशू करती है जिससे कि उसकी प्रेजेंट कैपिटल की या फंड्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए. इसलिए कंपनी 10,000 में से 6,000 शेयर्स को इशू करेगी और 4,000 लेट अस सपोज की कंपनी ने इशू नहीं किए. तो दिस 6,000 शेयर्स ऑफ ₹10 are considered as issued share for the company, and the 4,000 shares are considered as unissued. These unissued shares of the company are kept with the company, and as and when the requirement arises, the company can issue these shares again in the market. Now, issued में से अब चूंकि जितने शेयर्स मार्केट में इशू होते हैं उसमें से ही वी पीपल को, हम जनरल पब्लिक को ये राइट होता है कि हम उसके लिए अपनी एप्लीकेशंस को रेज करें और हम अपनी डिमांड रखें कि यस वी वांट टू परचेज दैट शेयर. तो कंपनी उसी टाइम में जब इंडिविजुअल या जनरल पब्लिक अपने एप्लीकेशंस डालती है शेयर्स को परचेज करने के, उस टाइम में कंपनी ये डिसाइड कर लेती है कि हमें कितने शेयर्स पे एप्लीकेशन रेज करनी है या हमें एप्लीकेशन के टाइम कितने रुपीस जनरल पब्लिक से कलेक्ट करना है. लेट अस सपोज कंपनी ने ये डिसाइड किया कि हमारा एक शेयर अगर 10 रुपीज का था तो वो 2 रुपीज पर शेयर एप्लीकेशन के साथ ही रिसीव करेगी. तो कंपनी के जो 5,000 शेयर्स थे उस पे हर जनरल पब्लिक ने सब्सक्रिप्शन किया और सब्सक्रिप्शन में 2 रुपए पर शेयर कंपनी को दे दिए और 1,000 कंपनी ने
कंपनी के शेयर्स ने जो भी इश्यूज थे उसमें अनसब्सक्राइब्ड हो गए, मतलब 1000 शेयर्स को का किसी ने एप्लीकेशन फाइल नहीं किया। 6000 शेयर्स कंपनी ने मार्केट में इशू किए, जिसपे 5000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए और 1000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन नहीं आए, या जनरल पब्लिक की डिमांड नहीं आए फॉर परचेजिंग। तो 5000 आर कंसिडर्ड एज सब्सक्राइब्ड शेयर एंड 1000 इज कंसिडर्ड एज अनसब्सक्राइब्ड शेयर। अब चूंकि जो सब्सक्राइब्ड होंगे उसी में हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। जिन्होंने हमको एप्लीकेशन भेजी कि यस आई वांट दिस अमाउंट ऑफ शेयर्स है, इतने नंबर ऑफ शेयर्स, उन्हीं लोगों से हम डिमांड कर सकते हैं कि आप शेयर्स के पैसे दीजिए। तो सब्सक्रिप्शन के बाद का सब्सक्रिप्शन रिसीव होने के बाद कंपनी ने ये डिसाइड किया कि हम इन 5000 में से 1000 को अनसब्सक्राइब करते हैं, मतलब 1000 के लिए जो हमारे पास जो अनसब्सक्राइब थे वो हमारे साइड में हो गए। अब कंपनी ने 4000 के लिए कॉल की, 4000 शेयर्स के लिए मार्केट में कॉल किया कि यस इतने लोग हमको शेयर्स के पैसे दे दे, और 1000 को कंपनी ने अनकॉल्ड अप करके अपने पास रख लिया। मतलब कंपनी ने ये डिसाइड कर लिया कि नहीं, हमारे पास जो 5000 एप्लीकेशंस आई हैं उसमें से हम सिर्फ 4000 के ही शेयर होल्डर्स को शेयर इशू करेंगे और बाकी 1000 को हम शेयर इशू नहीं करेंगे। वी केप्ट दैट सब्सक्रिप्शन एज अनकॉल्ड अप, तो इनको हम कहते हैं अनकॉल्ड अप शेयर कैपिटल। नाउ जो हमारे पास 4000 कॉल्ड अप शेयर्स थे उसमें से 3500 शेयर होल्डर्स जो थे हमारे, उन्होंने हमको पूरे पैसे दे दिए, मतलब पूरे 10 रुपए के जो शेयर्स थे वो पूरे 10 रुपए शेयर होल्डर ने हमको पे कर दिए। तो उसको हम क्या करेंगे, पेड अप शेयर कैपिटल मींस ऑल दो शेयर होल्डर्स who pay full amount to the company in contribution of share capital are came under paid up share capital। वहीं 500 शेयर होल्डर्स ऐसे थे जिन्होंने पैसे पे नहीं किए या जिन्होंने पूरे पैसे पे नहीं किए। लेट अस सपोज उन्होंने 2 रुपीज अपने अलॉटमेंट के पे किए और 2 रुपीज अपने एप्लीकेशन के पे किए, बाकी 6 रुपीज उन्होंने उन शेयर होल्डर्स ने पे नहीं किए। देयर आर सो मेनी रीजन व्हाई द पीपल बिकम अनपेड अप, तो इसके कारण उनको हम क्या कहेंगे, अनपेड अप। और यही जो हमारे अनपेड अप होते हैं यही हमारे कॉल्स इन अरियर्स में इंक्लूड। नाउ we will discuss some of the other aspects that is being linked up with issue of share and share capital, under subscription and over subscription। कई बार ऐसा होता है कि जब हमारी कंपनी इशू करती है शेयर्स तो हमको उतने सब्सक्रिप्शंस रिसीव नहीं होते हैं या उतने लोग हमारे शेयर्स की डिमांड रेज नहीं करते हैं जितना कि हमें चाहिए था। तो अगर हमको जो मिनिमम लिमिट डिसाइड की हो उससे कम एप्लीकेशंस आती हैं तो हम क्या करते हैं, तो हमारे पास जो एप्लीकेशंस आई हुई हैं उनको भी हम रिटर्न करके we again undergo the same process of issue of shares। और दूसरी चीज हमारे पास क्या होती है, ओवर सब्सक्रिप्शन मींस शेयर्स आर सब्सक्राइब मोर देन इशूड। हमने 5000 अगर मार्केट में शेयर इशू किए हैं तो हमारे पास 6000, 10,000, 8,000 एप्लीकेशंस आ जाएंगे, मतलब we have more number of शेयर्स डिमांड एज कंपेयर टू आर रिक्वायरमेंट। हमारे पास जो शेयर्स की डिमांड होती है हमारे शेयर्स की वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जितनी हमको रिक्वायरमेंट है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। बेसिकली दिस अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन दोनों ही कंडीशंस कंपनी के लिए बहुत अच्छी नहीं होती हैं, but in under subscription company has to go the whole process again, but in over subscription company has two options। one option is company may return the excess amount or excess application। कंपनी क्या करती है कि कुछ शेयर होल्डर्स को शेयर इशू करती है और जितने हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशंस आ गई हैं, मतलब दे कंपनी गो ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो हमारे पास स्टार्टिंग में 5000 एप्लीकेशंस आई होंगी उसको कंपनी एक्सेप्ट करेगी, उसके बाद की सारी एप्लीकेशंस को कंपनी रिजेक्ट करके वापस कर देगी।
और कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी प्रोरेटा बेसिस पे सारे शेयर होल्डर्स को शेयर इशू कर देगी। प्रोरेटा मतलब होता है कंपनी एक रेशियो डिसाइड कर देगी एंड इन दैट रेशियो कंपनी में इशू द शेयर्स अमंग ऑल द प्रोरेटा इशू जनरली कंपनी के लिए कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है, बट द कंपनी हैज टू गो टू मेंटेन इट्स रेपुटेशन इन द मार्केट। प्रोरेटा इशू में जनरली कंपनी क्या करती है कि जो इंडिविजुअल अगर 10 शेयर्स की डिमांड किए हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोरेटा द कंपनी उनको 10 की जगह 7 शेयर्स इशू कर देगी। जिन्होंने 5 डिमांड किए हैं उनको 5 की जगह 3 इशू करेगी। इसके बेसिस पे कंपनी जितने भी हमारे एप्लीकेशंस आए होते हैं शेयर होल्डर्स के, उन सारे शेयर होल्डर्स को कंपनी शेयर्स इशू करती है, बट द कंपनी कैन इशू लेस अमाउंट ऑफ शेयर्स अकॉर्डिंगली टू दैट दे डिमांडेड। जितना वो डिमांड किए होते हैं उसके अकॉर्डिंग कंपनी उनको लेस अमाउंट ऑफ शेयर्स इशू करती है। So over subscription, under subscription is I think clear. Now we will discuss forfeiture of shares. Forfeiture क्या होता है? If the shareholder fails to pay the call, then this share may be forfeited by the directors if authorized by the articles of association of the company. The forfeiture can be only for non-payment of calls on shares and not for any other reason. फॉरफीचर ऑफ शेयर का मतलब होता है कंपनी शेयर का जो अधिकार दी हुई है या कंपनी जो ओनर बनने का किसी भी शेयर होल्डर को राइट दी है, अधिकार दी है, वो अधिकार उससे वापस ले लेना, वो राइट उससे वापस ले लेना। ये कब हो सकता है? जब शेयर होल्डर किसी भी शेयर के पूरे पैसे ना पे कर पाए। ना पे करने के बाद भी कंपनी एक कॉल 2 कॉल करती है, still the shareholder is not able to pay the full amount for the share, then only the company has right to forfeit the share. Forfeiture का प्रोसेस क्या होती है? कंपनी कैन टेक अप्रूवल फ्रॉम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसके बाद कंपनी शेयर होल्डर्स के से ये कोई इंटीमेट कर देती है कि हाँ आपके शेयर्स फॉरफिट किए जा रहे हैं, और कंपनी को जितने भी पैसे उस शेयर होल्डर ने अभी तक दे चुके होते हैं वो सब कंपनी उन पैसों को जब्त कर लेती है। They or the company can hold that whole amount with them. उन सारे पैसों को कंपनी अपने पास रख लेती है and these shares are considered as forfeiture of shares. The only arrears और जो वो लोग जो कि कंपनी को पूरे पैसे नहीं पे कर पा रहे शेयर्स के, उन्हीं के शेयर्स को फॉरफीचर में डाला जाता है। Then reissue of share. Forfeited share can be reissued to some investors. जो भी शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट किए हैं, मतलब जिन शेयर्स ने कंपनी को पूरे पैसे नहीं पे किए हैं, उन शेयर से कंपनी ने क्या किया? शेयर्स को फॉरफिट कर लिया, मतलब ओनरशिप का राइट कंपनी ने ले लिया। क्योंकि अब कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है उतनी ही, तो इसलिए कंपनी क्या करती है? उन शेयर्स को अगेन मार्केट में री इशू करती है। दिस कैन बी इशूड, वो पार में भी इशू कर सकते हैं, मतलब 10 रुपीज के शेयर थे, 10 रुपीज में कंपनी इशू कर सकती है। अगर 10 रुपीज के शेयर्स को कंपनी 12 रुपीज में भी इशू कर सकती है, मतलब द शेयर इज बीइंग इशूड एट प्रीमियम। और 10 रुपीज के शेयर कंपनी 8 रुपीज में भी इशू कर सकती है, मीन्स द शेयर कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। मीन्स रीइशू ऑफ शेयर कैन बी डन इन par, premium or discount as the company demands or as the company is decided. So I think the concept of share capital is totally clear. If you have any doubt, any confusion, any query regarding this, please write in comment. Thank you.